Children, welcome to class 1 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes computer series 1. Children, in our previous video we were reading chapter 6. We have read the chapter. I hope you have understood, and we have completed the chapter as well as the book exercise. So children, in the previous video we have studied about one of the important part of computer, that is keyboard. So children, keyboard is a part of computer which is used for typing anything into the computer or giving instructions to the computer. And children, we have studied about the important buttons or the keys which are found on the keyboard, and by now I hope you have understood the use of each and every key found on the keyboard. Then we had revised some of the questions. We had made some questions from the middle of the chapter also. Now children, today we are going to read our next chapter, that is chapter 7, the mouse. So children, let us start. Children, this is chapter 7, the mouse. Children, as you know, mouse is also one of the important part of the computer, and we use mouse to also to give the instructions to the computer. So children, in this chapter we are going to cover the topics, that is mouse, features of mouse, holding a mouse, using a mouse, and function of mouse and mouse pointer. हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. And children, as you know, here is the Lappy. Lappy once again is going to tell all about the mouse in this chapter. So children, here Lappy says, "Dear kids, now you are familiar with the keyboard." As I told you children, we studied all about keyboards in our previous chapter, and now we are very much familiar with the word keyboard. Now let us know about mouse. So today we are going to read about another important part of computer, that is mouse. So children, mouse is also one of the important part of the computer. As we know, we use mouse to give instructions to the computer. Keyboard also we use to give instructions to the computer and feed anything we want to feed into the computer, or we want to type something, we type from the keyboard. Now today we are going to use mouse, and let us read more about this mouse with the help of the Lappy. Lappy will be telling us more about mouse. So let us start children. Now let us spell mouse. चलिए सबसे पहले हम mouse की spelling देखते हैं. M-O-U-S-E, mouse. So children, mouse, this name has come from the original mouse which we found in our house. आपके सभी के घरों में कभी ना कभी चूहे आते होंगे, या किसी के घर में तो हमेशा ही चूहे रहते होंगे. तो यहाँ पे जो माउस है, ये माउस का जो शेप होता है, ये एग्जैक्टली ओरिजिनल माउस जो हमारे घरों में पाए जाते हैं उसकी तरह होता है, इसलिए इसका नाम शायद माउस पड़ा है. सो M-O-U-S-E, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, माउस को यूज़ करके एनीथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज़ पॉइंटेड. कोई भी चीज़ जो कि स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, हम उसे पॉइंट करते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज pointing device. So children, first thing about the mouse is that it is one of the important part of the computer, and then it is a pointing device. Pointing का मतलब होता है किसी को भी चीज़ को शो करना. जैसे कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके किसी चीज़ को भी शो करते हैं. हम इस तरह से इंडेक्स फिंगर से किसी चीज़ को दिखाते हैं. अगर हमें किसी चीज़ को दिखाना होता है तो हम अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके उसे पॉइंट करते हैं. इसी तरह जो माउस होता है, हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन में जो भी चीज़ डिस्प्लेड होती है, उसे अगर उनमें से किसी भी चीज़ को हमें पॉइंट करना होता है तो वी यूज़ द माउस. एंड माउस इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एरो. एक छोटे से एरो के फॉर्म में माउस शो करता है स्क्रीन पे, और जब भी हमें कोई चीज़ माउस को यूज़ करके हम पॉइंट करते हैं, वी यूज़ दैट एरो टू शो इट ऑन द स्क्रीन. सो अ माउस इज दैट इज़ वाई एज इट पॉइंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, इट इज़ नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. विच इज़ यूज टू मूव, पॉइंट और सेलेक्ट आइटम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ही नहीं करते, बल्कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आइटम को, यू कैन से, चीज़ मतलब आइटम को यू कैन सेलेक्ट. आप
कुछ भी स्क्रीन पे दिया है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, यू कैन पॉइंट एंड यू कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह से मूव करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड चिल्ड्रन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मूविंग समथिंग इज व्हेन वी सॉल्व एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उसे भी मूव करना, हम माउस से ही उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। सो इन दैट केस वी आर मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू another. So children, by now mouse is a pointing device as it is used to point something on the screen. क्योंकि हम माउस को यूज़ करके किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे जो दिखा रहा शो कर रहा है उसे पॉइंट करते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। फिर उसके बाद चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मूव, पॉइंट और सेलेक्ट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर रही हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उनको पॉइंट कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ another important point about the mouse is that we can draw and paint using the mouse. जब हम पेंट करते हैं, we have studied about paint also. Children, in few months back we had studied our chapter paint. In that paint chapter we learnt that we can paint or draw into the computer only by using the माउस पॉइंटर को यूज़ करके ही हम किसी चीज़ को पेंट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो हियर चिल्ड्रन, माउस is the part of computer which is used to draw or paint something on the computer. अगर हमें पेंट के थ्रू ड्रॉ और पेंट करना है तो we can do only with the help of mouse. So children, I hope you are able to understand. You can see the shape also. जैसा कि मैंने बताया, it is somewhat like a original mouse. ये कुछ हमारे ओरिजिनल माउस की तरह दिखता है और इसीलिए शायद इसका नाम माउस पड़ा है. दैट इज़ वाई द नेम ऑफ दिस device is mouse. So till now we have studied about few टास्क विच वी डू यूजिंग द माउस. अभी तक हमने कुछ टास्क के बारे में पढ़ा है जो हम माउस से करते हैं. फर्स्ट थिंग इज कि एनीथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज पॉइंटेड यूजिंग द माउस. अगर हमें कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है उसे पॉइंट करना है तो हम माउस को यूज़ करके ही उसे पॉइंट करते हैं. उसके बाद अगर हमको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना है विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वी यूज़ द mouse. Then if you want to move something, we use the mouse. And other than these three important tasks, children, it is also used while drawing and coloring. Draw और पेंट करने के टाइम भी हम माउस को यूज़ करते हैं. So I hope you must have understood the uses of mouse, children. Now let us come to the other next topic. So here, children, another important point is features of a mouse. So let us see, children. A mouse commonly has 2 buttons. Commonly means ज़्यादातर माउस में मेनली 2 बटन्स होते हैं. चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ माउस. ये माउस का पिक्चर है. यू कैन सी हियर, इफ़ यू कीप अ माउस इन फ्रंट ऑफ यू, there are 2 buttons. You can see this is first button, this is second button, or you can say this is first and this is second. अब जो first button है, when you keep it straight in front of you, the first button will be towards your लेफ्ट हैंड. आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो बटन है वो उसको हम नंबर 1 कह सकते हैं और जो आपके राइट हैंड साइड में उसको नंबर 2 कह सकते हैं. एंड चिल्ड्रन, जब जो ये लेफ्ट बटन होता है द बटन विच इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आवर हैंड इज़ लेफ्ट बटन, उसको हम लेफ्ट बटन कहते हैं. और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको हम राइट बटन कहते हैं. एंड दिस इज़ द वे हाउ वी कैन रिमेंबर. और जब हम लेफ्ट हैंड बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो हम उसे क्लिक कहते हैं या फिर हम उसे सिंगल क्लिक कहते हैं. और जब हम लेफ्ट बटन को ही 2 बार क्लिक करते हैं तो हम उसे डबल क्लिक करते हैं. तो कोई भी काम हम इन बटन्स को क्लिक करके ही करते हैं. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग अबाउट द clicks. So if you press the left button once, that is click, उसे हम क्लिक कहेंगे. प्रेस करने को हम क्लिक कहेंगे या फिर हम उसे सिंगल क्लिक कहेंगे. इफ़ द सेम लेफ्ट बटन इज प्रेस्ड ट्वाइस, यानी 2 बार आप उसे प्रेस करते हो तो हम उसे डबल क्लिक कहते हैं. उसके बाद सिमिलरली चिल्ड्रन, नेक्स्ट साइड में हमारा राइट हैंड बटन है. अब राइट हैंड बटन
को अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो हम राइट क्लिक कहते हैं, उसे हम सिंगल और डबल क्लिक के नाम से नहीं जानते, हम उसे राइट क्लिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने लेफ़्ट बटन को सिंगल और डबल नाम दिया हुआ है, तो अगर हम सेम नाम उसे दे नहीं सकते, इसलिए हमने कुछ ऐसा नाम दिया कि हम याद करने में आसानी हो, तो हम उसे राइट क्लिक कहते हैं. सो हियर देयर आर 2 buttons, you can easily find out. One is towards the left of your hand and another is towards the right. And children, these the mouse, there is a wheel, small wheel in between these 2 buttons. You can see this wheel, ये जो व्हील है इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं, हम इसे स्क्रॉल बटन कहते हैं. चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड हाउ वी कैन स्क्रॉल द स्क्रीन. कभी कभी स्क्रीन बहुत लंबा होता है, मतलब पेज हमारा बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो वी नीड टू स्क्रॉल इट. तो हम कैसे स्क्रॉल करते हैं? हमारे पास साइड में भी एक स्क्रॉल वाला होता है ऑप्शन, लेकिन हम इस को भी ऊपर नीचे करके, व्हील को रोटेट करके भी, मूव करके भी हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं. सो दिस इज़ यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग द स्क्रीन, और दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज स्क्रॉल बटन, और हम इसे व्हील भी कहते हैं. एंड चिल्ड्रन, माउस आर फाउंड इन 2 टाइप्स, और कुछ कॉर्डलेस होते हैं, मीन्स वायर से कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, एंड देयर आर सम माउस विच आर कॉर्डलेस, मीन्स उसमें इस तरह का वायर नहीं होता है, ऐसा वायर नहीं होता है, वो बिना वायर के होते हैं, बट दे वर्क. सो उसे कॉर्डलेस बोल दे सकते हैं, मतलब उसके अंदर वायर नहीं होता है, तो माउस बिना वायर के भी होता है एंड वायर के भी होता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस. नाउ डेज वी आर हैविंग द माउस विच हैव नो वायर, सो इट इज़ विदाउट वायर एंड इट कोऑर्डिनेट्स विद द कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, दीज आर द फीचर्स ऑफ अ माउस. माउस छोटा सा होता है, इट लुक लाइक अ माउस, ओरिजिनल माउस विच आर फाउंड इन आवर हाउस, एंड देन इट हैज़ 2 buttons. इसके 2 बटन होते हैं, माउस में 2 buttons होते हैं. One is towards the left, that is why we call it as left button, and the other one is towards the right, so it is called as right button. उसके अलावा we have small wheel in between these 2 buttons, we call it as wheel, and this wheel is used for scrolling the screen. हमको स्क्रीन स्क्रॉल करना है, मेनू बहुत लंबा है वो स्क्रॉल करना है, उसके नीचे जाना है, तो हम उसको व्हील को यूज़ कर सकते हैं. सो here we can see it is given in the book also. A mouse commonly has 2 buttons and a small wheel on it. It has a long wire attached. So here it is given, it has a long wire attached which is used to connect the mouse with the computer. इस वायर को यूज़ करके हम माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास कॉर्डलेस या वायरलेस विदाउट वायर भी माउस आ रहा है, विच वर्क्स विदाउट कनेक्टिंग इट विद द computer. So these are the features of computer, children. Then our next topic is how to hold a mouse. You must have seen, अगर आपके पास माउस है तो आपने देखा होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि माउस कैसे पकड़ते हैं. नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर, इट इज़ वेरी नाइसली शोन इन दिस पिक्चर. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर फिंगर्स. हमारा फर्स्ट फिंगर, सबसे पहले ये हमारा थंब होता है, देन दिस इज़ इंडेक्स फिंगर. इसको जो थंब के बगल वाली उंगली होती है इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और थंब के बाद वाली फिंगर जो सबसे लंबी वाली फिंगर होती है इसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं. आप हाथ में देख सकते हो, जो सबसे लंबी फिंगर है उसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं. ये जो लंबी वाली फिंगर है इसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, और उसके पहले वाले को इंडेक्स फिंगर कहते हैं. तो फॉर ऑपरेटिंग द माउस, अगर माउस को ऑपरेट करना है तो वी यूज़ ओनली 2 fingers. हम सिर्फ अपने 2 fingers को यूज़ कर सकते हैं. और यूजिंग दीज 2 fingers वी कैन ईजिली ऑपरेट द माउस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इस पिक्चर में, इन द फिगर, हाउ द माउस इज़ बीइंग होल्ड. अब इसको कैसे पकड़ा हुआ है, देखो द पोजिशन ऑफ द फिंगर्स. योर मिडिल फिंगर इज़ हियर, ये आपका मिडिल फिंगर है जो कि आपके राइट बटन पे है, राइट बटन पे है, और इंडेक्स फिंगर आपका लेफ़्ट बटन पे है. इंडेक्स फिंगर इज़ ऑन लेफ़्ट बटन एंड आपका जो मिडिल फिंगर है इट इज़ ऑन द राइट बटन. सो दिस इज़ हाउ यू विल होल्ड द माउस. और उसके बाद जो आपका रिंग फिंगर है दैट इज़ बिलो द माउस. इट इज़ यूज टू
हैव अ ग्रिप ऑन द माउस, और थंब आपका इस साइड में, थंब आपका लेफ्ट हैंड साइड से ग्रिप दे रहा है, एंड जो आपका रिंग फिंगर है, जो मिडिल फिंगर के बाद में है, वो आपको राइट हैंड साइड से कंप्यूटर को, ये सॉरी माउस को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, और इट इज़ गिविंग अ काइंड ऑफ ग्रिप। इससे क्या हो रहा है, यू आर एबल टू ईजिली होल्ड द माउस। इससे आप टाइटली माउस को पकड़ रहे हो, एंड यू आर यूजिंग दीज 2 फिंगर्स फॉर होल्डिंग द ऑपरेटिंग द लेफ्ट बटन एंड द राइट बटन। तो बच्चों आप देख रहे हो कि आपके पास 5 उंगलियां होती है, एक लिटिल फिंगर होती है, एक इंडेक्स फिंगर होती है, लिटिल फिंगर के पहले वाली इंडेक्स फिंगर होती है, उसके पहले वाली मिडिल फिंगर होती है जो सबसे लंबी होती है, उसके बाद फिर मिडिल फिंगर के सबसे पहले लिटिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर, उसके बाद थंब है। तो आप इस तरह से रखोगे कि आपका जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है वो आपके राइट हैंड साइड के से माउस को सपोर्ट करेगा, और जो आपका मिडिल फिंगर है दैट यू विल कीप ऑन द राइट बटन, आप उसको राइट बटन पे होल्ड करोगे, रखोगे। देन इंडेक्स फिंगर को आप लेफ्ट बटन पे रखोगे, फिर लेफ्ट साइड से आप थंब से माउस को सपोर्ट करोगे। इन दिस वे यू विल होल्ड द माउस एंड यूज़ द माउस वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे वर्क कर रहे होगे तो दिस इज़ द वे यू विल होल्ड द माउस। नाउ जब भी आपको लेफ्ट बटन को क्लिक करना है तो यू विल यूज़ योर इंडेक्स फिंगर, और जब आपको राइट बटन को यूज़ करना है तो यू विल click using the middle finger. And children, in between if you want to scroll the screen and if you want to use the wheel, you will use the wheel with the index finger. आप index finger को उठाओगे और wheel को भी आप operate करते रहोगे. This is how you will keep your hand or palm on the mouse and operate the mouse. So children, आप इसे इसी तरह से रख करके देख सकते हो. Then let us read children what is given in our book. So our topic is how to hold the mouse. Topic is how to hold the mouse or holding a mouse. Here they are telling us how you will hold the mouse. So keeping your palm, आप अपने palm को keep your palm on the mouse. सबसे पहले आप अपने palm को mouse पे रखोगे and keep your index finger on the left button. Same thing as I told you, keep your index finger on the left button. आप अपने index finger को left button पे रखोगे. You will keep your index finger on the left button and keep your middle finger on the right button. Keep your middle finger on the right button. Now, children, always place the mouse on the mouse pad. हमेशा आप माउस को माउस पैड पर रखोगे टू वर्क इट स्मूथली. चिल्ड्रन, इफ़ यू डोंट कीप योर माउस ऑन द माउस पैड, योर माउस वोंट वर्क स्मूथली. वो कभी अटक जाएगा या फिर वो काम नहीं करेगा. इसलिए हमेशा हम माउस को माउस पैड पर रख करके ही यूज़ कर सकते हैं. तो कीप योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन and always place the mouse on the mouse pad to move it smoothly. If you want your mouse to work smoothly or move smoothly, keep it on the mouse pad. Then to move the wheel of the mouse, use your index finger. If you want to move the wheel of the mouse, you यूज़ योर इंडेक्स फिंगर. जब भी आप अपने व्हील को यूज़ करना चाहते हो, आप लेफ़्ट बटन से अपने इंडेक्स फिंगर को उठा करके फिर आप साइड बाय साइड व्हील को भी यू कैन यूज़. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ यू विल होल्ड द माउस एंड ऑपरेट द कंप्यूटर यूजिंग द माउस. So children, let us move to our next topic. Now children, how will you use the mouse? Now we have learned how to hold a mouse, and now let us learn how to use a mouse, using a mouse. So children, our next topic is using a mouse. Now you can see this is a cordless or the wireless, जिसमें वायर नहीं है. इस वाले माउस में देखो वायर नहीं है. In this we have wire and here we don't have wire. So whether we have wire or not, we don't have, you will hold the mouse in this manner. जो वायर वाला पार्ट होगा that will be kept in the front side, आगे की तरफ होगा. और similarly here also, अगर वायर होता तो यहाँ पे होता. If wire is not there, you will hold the mouse in this manner. So children, using a mouse. Now you can use a mouse by clicking it. Pressing the mouse button is called
क्लिकिंग. एज आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो माउस की वर्किंग है इट डिपेंड्स अपॉन द क्लिकिंग ऑफ इट्स बोथ द बटन्स. दोनों बटन को प्रेस करने का प्रोसेस को ही हम वर्किंग ऑन द माउस कहते हैं और उस प्रेसिंग को हम क्लिकिंग कहते हैं. वी वर्क थ्रू द माउस यूजिंग दिस क्लिक बटन, मतलब यूजिंग दिस क्लिक. तो हम अगर प्रेस करते हैं किसी भी बटन को तो हम उसे क्लिक कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, बाय क्लिकिंग यू कैन ड्रॉ एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. क्लिक करके ही हम ड्रॉ करते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं. उसके अलावा हम प्रेस करके, जब हम इस की को प्रेस करके थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं, फिर थोड़ा दूर मूव करके उसको रिलीज़ करते हैं, तो हम उसे ड्रैग करना कहते हैं. तो वी यूज़ माउस फॉर ड्रैगिंग ऑल्सो. किसी ऑब्जेक्ट को हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना है, तो भी हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं. सो चिल्ड्रन, as I told you, if you click the right button you call it as right click. अगर आप right बटन को क्लिक करते हो तो हम उसे right click कहते हैं, और अगर left बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो हम उसे single click कहते हैं. अगर आप left बटन को एक बार क्लिक करके काम करते हो या कोई कुछ भी करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल क्लिक, और अगर उसे दो बार क्लिक करते हो तो इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लिक्स. वन इज इफ़ यू प्रेस द लेफ्ट बटन वंस, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल क्लिक. इफ़ यू प्रेस द लेफ्ट बटन ट्वाइस, यानी 2 बार, उसे डबल क्लिक कहते हैं. एंड इफ यू प्रेस द राइट बटन इट इज़ कॉल्ड राइट क्लिक. इन दिस वे चिल्ड्रन वी यूज़ द mouse. So here let us read. You can use a mouse by clicking it. हम उसे यूज़ कैसे करेंगे? by clicking it. क्या क्लिक करेंगे? लेफ्ट और राइट बटन को क्लिक करेंगे. Now pressing the mouse button is called clicking. माउस बटन को प्रेस करने को ही हम क्लिकिंग कहते हैं. by clicking you can draw and select the object. by clicking you can draw and select the object. क्लिक करके ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और सेलेक्ट करते हैं. नाउ दिस इज हाउ वी यूज़ द माउस. नाउ चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ द माउस. सो चिल्ड्रन, फंक्शन ऑफ द माउस भी मैंने आपको समझा दिया है कि सिंगल क्लिक और डबल क्लिक क्या होता है. सेम थिंग वी आर गोइंग टू रीड ऑन दिस. द फंक्शंस ऑफ द माउस चिल्ड्रन, you can click a mouse button in different ways to perform different function. So we perform many functions using the mouse. हम माउस को यूज़ करके बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिक्स. हमारे इसी वजह से हमारे क्लिक्स भी अलग अलग होते हैं. एक बार क्लिक करके हम कुछ फंक्शंस करते हैं, 2 बार क्लिक करके कुछ फंक्शंस करते हैं, और राइट बटन को क्लिक करके कुछ दूसरे फंक्शंस करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ clicks here. Now you can click a mouse button in different ways to perform different functions. So as I told you, we click mouse in different ways to perform different functions. So here some are given. I have already told you about it. Let us understand it by using the mouse. आप mouse के through इसको जान लो. नाउ सिंगल क्लिक क्या होता है? सिंगल क्लिक का मतलब एज आई टोल्ड यू कि प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड सिंगल. SINGLE सिंगल. PRESSING प्रेसिंग, इसे हम प्रेसिंग कहते हैं. और PRESSING प्रेसिंग द लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, MOUSE माउस, BUTTON बटन वंस यानी एक बार इज कॉल्ड सिंगल क्लिक. जब ये हमारा लेफ्ट बटन है, मैंने आपको बताया, अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ये लेफ्ट बटन है, और जो हमारे राइट हैंड साइड में है इसको हम राइट बटन कहते हैं. अब जो लेफ्ट बटन है इसको अगर एक बार हम क्लिक करते हैं तो वी कॉल इट एज सिंगल क्लिक. जब लेफ्ट बटन को हम एक बार क्लिक करते हैं तो हम उसे सिंगल क्लिक कहते हैं, और जब लेफ्ट बटन को हम 2 बार क्लिक करते हैं तो वी कॉल इट एज डबल क्लिक. हियर यू कैन सी, इफ़ यू प्रेस द सेम लेफ्ट बटन ट्वाइस और 2 टाइम्स, जब इसी बटन को आप 2 बार क्लिक करते हो तो यू कॉल इट एज डबल क्लिक. अगर लेफ्ट बटन को आप एक बार क्लिक करते हो तो यू कॉल इट एज सिंगल क्लिक. एंड व्हेन यू प्रेस द सेम बटन ट्वाइस या 2 बार तो आप उसे डबल क्लिक कहते हैं. और उसके बाद वी हैव अनदर बटन दैट इज़
राइट बटन। अगर राइट बटन को आप एक बार क्लिक करते हो तो उसे हम राइट क्लिक कहते हैं, और इसको हम हमारे पास सिर्फ इसको एक ही बार प्रेस करने का ऑप्शन है। दूसरा 2 बार हम राइट बटन को नहीं प्रेस करके कोई ऑप्शन यूज़ करते हैं, सिर्फ एक बार प्रेस करने से ही हमारा काम हो जाता है। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ क्लिक। फर्स्ट इज 1 सिंगल क्लिक। जब हम लेफ्ट हैंड बटन को एक बार क्लिक करते हैं वी कॉल इट एज सिंगल क्लिक, और जब हम लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं वी कॉल इट एज डबल क्लिक। एंड व्हेन वी प्रेस राइट हैंड बटन once, it is called right click. Okay, so I hope you must have understood RIGHT, right, CLICK, click. So children, our next topic is dragging a mouse. This also I told children, clicking and holding the left button while moving the mouse is called dragging. जब हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके क्लिक करके उसके बाद होल्ड करके रखते हैं, उसको रिलीज़ नहीं करते, हम उसको होल्ड करके काफ़ी लंबे टाइम तक उसको प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद फिर उसको मूव करते हैं लेफ़्ट बटन, और उसको मूव करके फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं, उसे हम ड्रैगिंग कहते हैं। हमने उसको प्रेस किया, उसको मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद होल्ड किया, होल्ड करके उसको मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद रिलीज़ किया, तो हम उसे ड्रैगिंग कहते हैं। सो चिल्ड्रन, देयर इज़ अनदर वर्ड ड्रैगिंग, DRAGGING, ड्रैगिंग। नाउ ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैगिंग का मतलब होता है क्लिकिंग एंड होल्डिंग द लेफ्ट बटन। पहले हम लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे और फिर उसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद जब हम उसे रिलीज़ करेंगे तो हम उसे ड्रैगिंग कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। जब हम ड्रैगिंग यहाँ पे ड्रैगिंग कर रहे हैं तो हमने एक जगह इसको होल्ड किया, ठीक है, होल्ड करके फिर हमने इसको दूसरी जगह मूव किया और उसके बाद रिलीज़ किया। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे हम ड्रैगिंग करते हैं। और फिर जब छोड़ देते हैं तो हम उसे ड्रॉपिंग कहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग। नाउ चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑल्सो, you can drag the mouse to move the object from one place to another। जिस पे हमने क्लिक किया होता है उसी को हम तब तक दबा के रखते हैं जब तक हम उसे छोड़ते नहीं हैं। तो एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह लाना, इसे हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहते हैं। उसके बाद ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ये सारा चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होता है। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप्स एंड पिक्चर्स। हम कब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं? जब ड्रैग तो हम करते हैं जब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाने होते हैं, पिक्चर्स बनाना होता है और ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद हम ड्रॉप तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को, किसी फिल इन द ब्लैंक्स को या मैच द कॉलम को मैच करना होता है, दैट टाइम हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस, द अनदर यूज़ ऑफ द mouse. So till now we have studied about these different points, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिकिंग सीखा, ड्रैगिंग सीखा। नाउ चिल्ड्रन, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द माउस इज दैट इट इज़ अ pointer. Mouse is also known as pointer. Why mouse is known as pointer? Because it is used for pointing something on the computer screen. हम माउस को यूज़ करके कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं। As I told you, it is done in the same manner, जैसे कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, किसी चीज़ को दिखाना होता है तो उसकी तरफ उंगली करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे माउस पॉइंटर, जो कि एक एरो के शेप में होता है, इसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं। सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन इट इज़ नोन एज माउस पॉइंटर। दिस एरो इज़ नोन एज माउस पॉइंटर एंड दिस माउस पॉइंटर इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरो के फॉर्म में होता है स्क्रीन पे, इसलिए इस एरो को, एंड इट इज़ हैंडल्ड बाय द माउस। सो इसीलिए हम इस पॉइंटर को माउस पॉइंटर कहते हैं। Whenever you move the mouse, a small arrow also moves on the screen of the computer and this small arrow is known as mouse pointer. इस छोटे से arrow को हम mouse pointer कहते हैं। So children, you have to learn the spelling POINTER, mouse pointer, MOUSE, mouse, और POINTER, mouse pointer. So children, our last topic is mouse pointer. In this way we have learnt all about mouse. Let us once again see this. So here children,
whenever you move the mouse, a small arrow, this is called a small arrow, you must have seen on the computer screen, also moves on the screen of the कंप्यूटर. जब भी हम इस माउस को मूव करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो छोटा सा एरो होता है जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं वो भी स्क्रीन पे मूव करता है. दिस स्मॉल एरो इज नोन एज माउस पॉइंटर. इट मूव्स विद द माउस बिकॉज इट इज ऑपरेटेड बाय द माउस. सो in this way, children, you have learnt about mouse pointer also. So go through the chapter, learn all the difficult words which we have come across in this chapter, and then try to recall whatever we have studied here. So children, if you are not able to understand once, you can read it twice, and we will meet once again with the same chapter. We will revise it once again in our next video. Till then, children, you read the chapter, and thank you.